नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। जय जिनेन्द्र सभी को। आज होपफुली हमारा सेमेस्टर 4 का लास्ट क्लास है। हम जो बच्चे कुचे गंदर हैं उनका आज ले लेंगे और इसके बाद लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं आपके। उसके पहले अगर किसी को कोई प्रश्न है, गंधर करना है, तो आप मुझे कॉल करके कर सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। किसका पहले है सबसे? और प्रभा रूपल, जी, हेमल, बिंदु, जो लोग भी वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज कर दीजिए। प्रभा Yeah, जी, so आई Prabhat, हैव टू से समथिंग। यस। मैंने ना कल गंधर में आई थिंक एक गलती की थी। इन दैट the galti was that I was in the definition of aprayojan bhut, because what I said is that जिन विशेष यथार्थ श्रद्धान एक करने सेकेंड, से कैन यू हियर मी? आर यू yes एबल टू हियर Prabhaji, मी? ओके। yeah, I can hear you. So in that what I had said is जो प्रयोजन भूत क्या है, अप्रयोजन भूत क्या है। तो उसमें मैंने कहा कि राग द्वेष का भेद का श्रद्धान होता है, वो प्रयोजन भूत है। एंड द अप्रयोजन भूत आई हैड सेड उनका यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, मतलब कि अयथार्थ श्रद्धान होता है इस अप्रयोजन भूत। बट एक्चुअली बोथ आर प्रयोजन भूत is what the book has said. So I, in that thing where I said कि रागादि दूर होता है इस प्रयोजन भूत, रागादि दूर नहीं होता है इस अप्रयोजन भूत, so that is incorrect. Both are prayojan bhut. प्रयोजन भूत, यस। And as well as जिनसे दुख होता है और सुख होता है, both are prayojan bhut. So in my thing yesterday, the second part where none of those three happened, I had called it a prayojan bhut, but that was my mistake from yesterday. I don't know. I woke up this morning and I realized, but both are prayojan bhut. You need to know what is a prayojan bhut अप्रयोजन to भूत, यस। focus on the prayojan bhut. So that's why यस। I had to correct myself and say, in case they listen to yesterday's video, they would get the wrong information. So Okay, I that's a said, very good idea. let thank me you. just do Okay. this over here. Yes, very nice, very nice. Because see, sometimes what is probably happening is even though everybody was listening, they may not have quite got that. Because it was, कि जो प्रयोजन भूत है, but yet it is prayojan bhut. That little extra sentence you may not have said, and none of us got it. So, okay. So today, I who is hope going first? I hope everybody heard who was here yesterday so that they can edit it in Well, their minds. yeah, no, that'll help because I had listened to the thing this morning. So anyway, I still have to do that studying. So this will help me. Thank you. Okay. All right. So I have Megha ji's, she recorded and sent it. I don't know if she sent it to you, Hemal. No, I don't have Um, it. you But don't today have we it. have Priya ji, Seema ji, Amita ji. And Rupal ji is here, but she said she will call you up and set up a date and time and do it. That's fine. So we have 3 today already live, right? And then if we have time, we can play Megha ji's, right? Is that fair? I cannot. You're muted, Hemal. Hemal, you're muted. We will be done with everybody except Rupal ji Today, yes. for today. So I think that's great. We're doing pretty good on that. Yes. So who is going first? I think Amita ji said she would do it. Yeah, let her. Okay. चलो आप शुरू करिए अमिता जी आपका। ओके। आज मेरा टॉपिक है अनेकांतवाद एवं स्यादवाद। ओके।
जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है अनेकांतवाद। मोटे तौर पर यह विचारों की बहुलता का सिद्धांत है। अनेकांतवाद की मान्यता यह है कि भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः एक ही दृष्टिकोण से देखने पर पूर्ण सत्य को जाना नहीं जा सकता। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु में अनंत विरोधी युगल एक साथ रहते हैं। एक समय में एक ही धर्म अभिव्यक्ति का विषय बनता है। प्रधान धर्म व्यक्त होता है एवं शेष जो होते हैं वो गौण होने से अव्यक्त रह जाते हैं। वस्तु के किसी एक धर्म के सापेक्ष ग्रहण एवं प्रतिपादन की जो प्रक्रिया होती है वह नय कहलाती है। वस्तु बोध की दो महत्वपूर्ण दृष्टियां हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक दृष्टि वस्तु के सामान्य अंश को ग्रहण करती है, जबकि पर्यायार्थिक दृष्टि जो होती है वो वस्तु के विशेष अंगों को ग्रहण करती है। प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मों का समवाय होती है। वस्तु में अनंत विरोधी युगल एक साथ रहते हैं, जैसे नित्यत्व अनित्यत्व, वाच्यत्व अवाच्यत्व, एकत्व अनेकत्व आदि विरोधी धर्म परस्पर सापेक्ष रहकर भी अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। अनेकांतवाद को एक हाथी और 5 अंधों की कहानी से बहुत ही सरलता से समझाया जा सकता है। 5 अंधे एक हाथी को जब टच करते हैं तो उसके बाद वो अपना अपना अनुभव बताते हैं। एक अंधा जो हाथी की टेल को, पूंछ को टच करता है तो उसे लगता है कि वह एक कुछ रस्सी जैसी चीज है। दूसरा जब एक उसके सूंड को पकड़ता है तो उसे लगता है जैसे ये कोई स्नैक है। और तीसरा हाथी जब पैर पकड़ता है तो उसको लगता है ये कोई पिलर जैसी चीज है। इसी प्रकार वो नेक्स्ट जब कोई उसके कान को पकड़ता है तो वो लगता है उसे सूप जैसी कोई चीज है। सभी ने सत्य को महसूस किया, पर किसी का भी सत्य पूर्ण नहीं था। अतः एक ही वस्तु में कई गुण होते हैं, पर हर व्यक्ति को अपना अपना दृष्टिकोण सही लगता है और उसे लगता है कि मैंने जो महसूस किया है वो ही पूर्ण सत्य है, जबकि ऐसा नहीं होता। हर वस्तु में, पदार्थ में कुछ गौण होते हैं, कुछ प्रमुखता से दिखाई देते हैं। यही अनेकांतवाद का सार होता है। अब हम स्यादवाद को समझते हैं। स्यादवाद सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट होता है। सत्यादवाद सिद्धांत के अर्थ से यह स्पष्ट होता है कि हमारा ज्ञान सीमित और सापेक्ष होता है और हमें ईमानदारी से यह बात स्वीकार भी कर लेनी चाहिए। हमें ऐसे दावे करने से बचना चाहिए कि हमारी बात पूर्ण सत्य है। स्यादवाद मूलतः स्यात् शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संभवता, हो सकता है, अर्थात हमारे पास जो ज्ञान है वह निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष है। स्यात् या अपेक्षाकृत बोलना हमारे सभी निर्णयों से पहले अवश्य होना चाहिए। पूर्ण पुष्टि या पूर्ण अस्वीकृति दोनों ही गलत होती हैं। हमारे सभी निर्णय सशर्त और दोधारी ही होते हैं। साधारण मनुष्य में संपूर्ण वास्तविकता को पहचानने की शक्ति नहीं होती। हर व्यक्ति को अपनी राय देते हुए सदैव कुछ सापेक्षता सूचक वाक्यांशों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे जहां तक मैं समझता हूँ, मेरा मानना है, मेरे ख्याल से, जितनी जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार। ऐसी भाषा से विनम्रता तो झलकती ही है, बट हमारी किसी भी बात या कही हुई बात के गलत होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इनमें जो डिफरेंस है वो मैं बताती हूँ, बट मुझे थोड़ा डाउट है, वो थोड़ा मुझे कम समझ आया है। अनेकांतवाद को सप्तभंगी नय भी कहा जा सकता है। पूर्णतः समग्र ज्ञान ना होना ही अनेकांतवाद है, और किसी एक दृष्टिकोण से किसी वस्तु को देखना और सही मानना स्यादवाद है। ये तो मैंने बुक में से देखकर लिखा है, बट मुझे समझ नहीं आया है, इसमें थोड़ा डाउट है, वो मुझे समझ हाँ, नहीं आया। देखो, अनेकांतवाद, आपने पहला वर्ड क्या बोला कि किसी वस्तु को पूर्ण नहीं जानना, ऐसा कुछ बोला? आप थोड़ा ये लास्ट 2 सेंटेंसेस रिपीट करिए। और बाय द वे, आई थिंक अपने आप म्यूट चैप्टर, पे हाँ अमिता जी, आप म्यूट पे हो, और Okay. आप
मेरे अपने चैप्टर के नाम अनेकांत और स्यादवाद है, राइट? नॉट अनेकांतवाद एंड स्यादवाद। क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही हो जाएगा। अनेकांत का मतलब है कि वस्तु के अनेक अंत होते हैं, और स्यादवाद उनको कहने की शैली है, क्यों उसको समझाने की शैली को स्यादवाद कहते हैं। ओके। ठीक है। सो ठीक है अब मैम। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, ठीक है। उन अनंत धर्मों को जानते हुए जब आप एक पक्ष की बात करते हो, दैट डजंट मीन यू डोंट नो द अदर। जो हाथी है ना, आपको अगर पूरा पता है, फिर आप कहो कि कान की अपेक्षा हाथी सुपड़े जैसा है, देन इट इज ओके। पर अगर आपने हाथी को जाना नहीं, देखा नहीं, अंधे हो, सिर्फ उतना बोलो कि अपेक्षा नहीं बोलो, और कहो कि हाथी तो सुपड़े जैसा ही है, तो वो क्या हो जाएगा? कोई आंसर करेगा? एकांतवाद। इस दूर नहीं। एकांत व दुर्नय, क्योंकि नए ही नहीं लगाया ना, ठीक है ना। सो वो डिफरेंस है। तो ठीक है, आप आगे उसके। डन मैम। यू वर डन, ओके, नो प्रॉब्लम। सो क्लियर हो गया ना? बिकॉज अदरवाइज अनेकांतवाद स्यादवाद आर सेम। अनेकांत मीन्स अनेक अंत वाला धर्म है, और स्यादवाद उसको कहने की पद्धति है, ठीक है। तो अब बताइए कि आप लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स दो जिसके अनेक अंत हैं। मैम जैसे अगर कहीं पर एक ग्लास भरा हुआ रखा है पानी से, तो उसको कोई ये बोल सकता है कि ये ग्लास आधा भरा है, और कोई ये बोल सकता है कि ये ग्लास आधा खाली है। ठीक एक है। ही एग्जाम्पल। और उसके और भी तो, ग्लास को ही ले लो, उसके और क्या क्या उसके बारे में बता सकते हो आप? ये ग्लास कांच का ग्लास है, या इस ग्लास को देख के किसी को प्यास लग सकती है कि मुझे पानी पीना है। सिर्फ उसका मतलब उसका विचार सिर्फ ये हो सकता है, ग्लास देख के उसे ऐसा लगे कि मुझे पानी पीना है। किसी को ये देखकर लग सकता है कि ये ग्लास आधा भरा है, किसी को देख के लग सकता है कि इसमें पानी आधा है। मतलब सबके अलग अलग हाँ, तो पॉइंट ऑफ व्यू हो देखो, सकते हैं। ग्लास के अंत अलग है, धर्म अलग है। वो कांच का भी है, उसमें पानी भरा जा सकता है उसमें। तो इतनी सारी चीजें हैं, पर आप किसी एक समय में एक ही बात को व्यक्त कर सकते हो, कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो अब है तो अनेक चीजें उसमें। एट अ टाइम यू कैन ओनली स्पीक अबाउट वन थिंग, है ना। हाँ, हमारे शब्दों की अच्छा, तो सीमा वो एक चलो, हाँ, लिमिट होती है। एक एग्जाम्पल वो हो गया। अब आप अपने आप पे घटा के बताओ। हाँ, जैसे मैं अमिता हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, हम्म, मैं किसी की माँ भी हो सकती हूँ, मैं किसी की हम्म, बहू हूँ, मैं किसी की फ्रेंड भी हो सकती हूँ। जैसे हम्म। मुझे अगर अलग अलग रूपों में देखा जाए तो मेरे भिन्न भिन्न रूप व्यक्त किए जा सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति के लिए मेरा स्वरूप अलग अलग है। हाँ, तो अब उसमें सप्तक भंगी कैसे लगेगी? कि व्यक्तता में आप किसी की अपेक्षा पत्नी हो, तो पत्नी का अस्तित्व हुआ उसकी अपेक्षा। किसी हम्म। और की अपेक्षा आप पत्नी नहीं हो, हम्म। राइट? ठीक है। अब आप इसकी पत्नी हो और इसकी नहीं हो, दोनों को आप एक साथ नहीं बोल सकते। एक के बाद एक बोलना पड़ेगा कि अमिता अपने हस्बैंड की पत्नी है, अपने भाई की पत्नी नहीं है। आप एक साथ नहीं बोल पाए, उसको बोलेंगे। थर्ड वाला कौन बताएगा? भंग। अस्तित्व, नास्तित्व एंड अस्तित्व नास्तित्व वन आफ्टर अदर। या, क्रम से। उसको एक के बाद एक, राइट? प्रभा जी, अब हर थिंग, हर टॉपिक is इज not अनेकांत। Saptabangi. I know it हाँ, is not. I know it is not. But still, I'm मैम just मेरा क्लियर हुआ। asking her the Anant
धर्म वो सब है ना. And every time you think about that, it is okay to relate, because Saptabhangi Yeah. otherwise is a difficult topic. And if you don't constantly think about it, it won't sit with you. That's why I'm trying to again say this, okay? So, तो ठीक है. अब मुझे ये बताओ कि मैम योगा किसी भी कर्म की वजह से परिवर्तित नहीं होता, ऐसे स्वभाव की रुचि हमें कैसे लगेगी, तो हमें उसे जानने का विकल्प करना, हमारे कर्म are you practicing, Seema ji? Seema ji, we आपका can hear unmuted you. है. ओ या मेरा तो पटर पटर चल रहा है मैडम, रिवीजन. सॉरी अबाउट दैट, आई एम रियली सॉरी, आई वाज ऑन म्यूटेड. मेरे को नींद नहीं आती ना, तो टप 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 टप. आई नो. एनीवे, सॉरी अबाउट दैट, प्लीज कंटिन्यू. Okay. Anyway, so अब okay. So अनेकांतवाद और स्यादवाद, या अनेकांत वस्तु का स्वरूप है अनेकांतमय, और स्यादवाद बोलने की शैली है. आप अपने लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए जिसमें कि हो सकता है आप पहले कोई और तरीके से बोलते थे या मन में समझते थे, और अब कैसे करते. अनिकांत एंड स्यादवाद दोनों, बोथ. हम्म. हम्म. अनेकांत तो अगर हम स्यादवाद को देखें तो सापेक्षता से जो एग्जाम्पल आता है वो तो खुद अपने लिए पर्सनली आता ही है मैम, जो अभी मैंने दिया. और अनेकांतवाद का एग्जाम्पल हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, अब पढ़ने के बाद ये लगता है कि हमारे आसपास देखें हम, अपनी लाइफ में या थोड़े समाज में भी देखें तो छोटी मोटी चीजों को लेकर, विचारों को लेके जो परस्पर विरोधी विचार रहते हैं, घर में भी रहते हैं, हस्बैंड वाइफ में भी अक्सर रहते हैं, कि छोटी छोटी चीजों को लेकर बहस हो जाती है और हम सोचते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, सिर्फ मैं ही सही हूँ. बट हाँ, अनेकांतवाद को जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि मैं ही सही नहीं हूं, ऐसा भी हो सकता है. सामने वाला भी सही हो सकता है. किसी भी टॉपिक को लेकर जब आर्ग्यू हो जाते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो बच्चों से आर्ग्यूमेंट हो, तो हमें ये समझ आने लगता है कि वो भी अपने जो भी बात कह रहे हैं वो सही हो सकती है, क्योंकि सभी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. तो अनेकांतवाद को लेकर हम ये चीज समझ सकते हैं अच्छे से कि हाँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी उनकी जगह सही हो सकता है. बिल्कुल. सो देखो, सपोज किसी को आपने देखा कि ये पर्सन बहुत चिड़चिड़ा है, तो क्या वो पूरा चिड़चिड़ा है? सी नॉर्मली तो हम क्या कह देते हैं, अरे ये तो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है. नेचर देन उसका यू से ऐसा है. हाँ, देन यू से कि नहीं, अच्छा ठीक है, ये चिड़चिड़ा है, पर ये म्यूजिक में बहुत टैलेंटेड भी है, या मतलब उसमें और भी तो कई चीजें होंगी ना, गुण अवगुण जो भी समझ लो. तो आपने कंप्लीट को तो जाना नहीं, और उसके एक चीज को देख के आपने कह दिया कि ये तो ऐसा ही है. या हम सो लोग वो जल्दी से निर्णय पे पहुंच जाते हैं. हाँ, जज कर राइट, लेते हैं सो जल्दी से लोगों को. वो हाँ. अनेकांत समझ के कि वस्तु के अनेक धर्म हैं. हमें, you should, anytime you want to judge somebody, you should take it with a grain of salt. कि मैं उसको जज कर रही हूँ, पर मुझे पता होना चाहिए कि मैं ओनली इस अपेक्षा दिस एक पर्सन इज लाइक या दिस. सिर्फ हम एक ही धर्म को, एक ही धर्म को देख रहे हैं, उसके उसके अनंत गुण है, अनंत धर्म है. हाँ. So Prabhaji, the Durnai would be ये चिड़चिड़ा ही है. That is Durnai, correct? Because I didn't put हाँ. अपेक्षा. मगर हाँ. नेचर की अपेक्षा ये चिड़चिड़ा है. Then that is स्याद्वाद. नहीं, देखो क्या होता है. हाँ, yes, if we say that, या फिर lot of times when we say, even if we don't use the word हमेशा, ये तो चिड़चिड़ा रहता है, suppose ऐसे बोल दिया, we didn't really use the word हमेशा, but it's implied in our minds. We think that this person is always like that, right? So I'm not only talking about speaking, even in our minds,
If we judge that person as that, we are hurting ourselves. Versus if we said, okay, this person is chirchida, then you say, stop and think. Okay, maybe only between us two there's an issue, and he's always chirchida with me. Maybe he's okay with others. So then you, number one, you won't judge. Number two, you will take it a little lightly that, hey, maybe I was not so nice to him too. And maybe that's why in return he's like this. At least you'll find your fault too. Otherwise, you generalize that person, that this person is always bad. So what's the big deal? It's not my fault, it's him. This is a very So, good example. Very right. critical in day-to-day life. But then Because, Prabhaji almost for anything then, yeah. you, in a sense, then it's really not having an opinion about anything, right? And just No, accepting you it for have an what it is, opinion, move then on. you say only with me in that instance he was like this. That's Versus, how see. you have to think about it. now Understood. think about it. If somebody saw you only a couple times and they judged you, total Rupal is this way, would that be fair Right. to you? Oh, No, right. right. And that's what happens Right. in a lot of relationships. You don't see Correct. everybody all the time. So people try to Right. judge you with the limited time they've spent with you. And it cannot be always accurate. But if they took it with a grain of salt, as like, say, if somebody asked me, how's your bahu? Right? So I can say, Mhm. well, so far, whatever I've known of her, this is what I've observed. Right. So I'm not telling her that the whole thing she's like this, good or bad, whichever way. Got it. So I'm being more specific that, hey, I only know her for a few months, whatever, and I only know her in these circumstances, and she was fine. But that doesn't mean she never gets angry. That doesn't mean she never is going to disobey me. Right. So, Prabhaji, I have to say one thing. Since we learned Anikantvad, Syadvad, now when I talk to my husband also, I say, right now, this is what is happening to you that I am noticing. which is much better sounding than saying you were always like this. Yeah. Well, I mean, Prabhaji, you can still say, yeah, I have one It- other thing I want to clarify. You know, Mhm. it is true that you will use this language for this Praman and this, but there are some things that are facts that cannot have that's this. fine. But see, not just facts, even kehne ko bhi, like a small jagda, and you may say to your husband, oh, you're always like this. You're doing this to me. But in your mind, as long as if you understand in your mind that only in this specific instance he was like this, you'll be a little calmer. You may not specify to your husband exactly with this specific instance, this is how you behave. It's not always practical to do. But if you understand in your mind, you will be much less aggressive about it. Yeah, but if something like I am a doctor, there is no Right? if and but and then over there, right? That is a fact. Then उसमें तो That's कोई fine. प्रमाण नहीं लगेगा. That becomes सम्यक एकांत or ekant or samyak ekant. No, Because no. it's the So, truth. okay. So if anything is whichever way you look at it, okay, this person is sick to his stomach. Let's just an example, right? Number one, as soon as you said sick to his stomach, you've given the apeksha, right? You're saying he's sick, but only with his stomach, or he has a fever, or it's a, pediatrician, some baby came and baby is constipated, whatever the case may be. So naturally you end up giving apeksha. Or let's say somebody, Yeah, go ahead, Ripple, what are you trying to say? so I guess, yeah, so I'm just trying to come up with another example. But if we say like this, the table next to you is white, and it is white. That's fine. Then that is samyak ekant, because there is no other like confusion about it. Okay.
Yeah. So when it is the truth, you can say it as the truth. Of course, yes, yes. I mean, in Dravyarthik Drashti, there is Atma It's ke easier gun to hai, be. to gun hai, to gun hai. And then you say it as is, yes. So gun pe nahi apply hoga. ठीक है? Okay. Like white is a That is right. characteristics. Correct. I think Amita ji has And one more it's- question. Yes. So let's ask her the last question. Um, अगर आप अनेक okay, let's say आपका अपनी mother in law से बहुत झगड़ा हो गया. She just happens to meet whatever, say something, you didn't do something right, and now she's like really upset and whatever, right? How would you prove it to her that you're really not that bad? Using Syadvad and Anekant. मैम सबसे पहले तो हम मुझे जो भी आर्ग्यूमेंट हुए हैं उनके लिए सबसे पहले तो सॉरी बोल के उनको ये बोलना होगा कि आप अपनी जगह सही हो बट मैं अपनी जगह सही हूँ. ये वाली बात मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक है कि उन्होंने बोला किसी भी कोई भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि उन्होंने मुझे ये चीज बोली जो मुझे बहुत खराब लगी. तो मैंने उनको जैसे आर्ग्यू किया, उन्होंने मुझे आर्ग्यू किया, बात बहुत बिगड़ गई. फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, वो अपनी जगह सही हो सकती हैं बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप. उनकी बात अपनी जगह सही हो सकती है, मेरी बात अपनी जगह सही हो सकती है. तो फिर मैं उनको जाके बोलूंगी कि आपने जो भी कुछ कहा मुझसे वो आपकी बात अपनी जगह सही है, मेरी बात मेरी जगह सही है. तो शायद वो समझ जाए इस चीज को. ठीक है. दूसरा ऑप्शन ये भी है आपके पास कि जब आपको ये समझ गया कि वो अपने पर्सपेक्टिव से सही हो सकती, तो फिर आपको अपना पर्सपेक्टिव लाने की बोलने की जरूरत नहीं है. आप अपने मन में सोच सकते हो. ओके. अगर आपको झगड़ा ही खत्म करना है, सी इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट स्पीकिंग. Okay, Vad also happens in mind, right? You also speak to your mind. So if you would say to your mind that I am right with my perspective because like this is what everybody does, everybody goes out, whatever the case may be. But then at the same time, this is not her background. So she's right based on her background. So if I would just be humble and modest and say, okay, yes, I'm sorry you didn't like it. Even though you can say to yourself that, hey, I'm correct based on my background or perspective, that's okay. But that'll Prabhaji, end I the wonder issue right whenever there. Yeah. we become mothers-in-laws, all of us, Yeah. if we will remember these things when we I'm talk to our trying to right daughters-in-law. now. I'm a Oh, relatively darling. newer one. So yeah, it's You can funny ask because, me. like we are from Rajasthan, right? So we don't, like I didn't grow up wearing backless and strapless and sleeveless and this and that, right? So my daughter-in-law, just like any normal girl would these days, wear short dresses and sleeveless and whatever. And so I had to like tell her that, hey, whatever you wear there is fine, but with the family in India, it's more appreciated if it's less, revealing types clothes. So she's a little careful, when she's with the family. But so like right now we were at the wedding and she somehow thought she didn't have an outfit for haldi. So one of my cousin's wife took her out shopping and she got her some sari and she, like within 4 hours, they got her a blouse and a jacket made already. So she was telling her, ki, acha, ye le lete, and then we'll get a jacket with it. So she tells her, yeah, you sound like my mother-in-law. She does. Well, I will tell you, in my experience as a mother-in-law, I've learned to just keep my mouth shut. Yeah.
No, but sometimes you can't because you do want to protect you because can't. you don't want her to come strapless and No, necklace and no. whatever in the front of this Rajasthani family, and then everybody's like, okay, what is this happening? Yeah, so there's certain things you can say, but most of the time, Yeah. these are my daughters, right? So, but Mhm. they're not my daughters, they're now part of being a couple, correct? So I Mhm. have to be very careful of what I say. And so even with my daughter bringing up her son, I just keep if she asks, I tell her. If she doesn't ask, I keep my mouth shut and I move on. Mhm. Yeah. And it's a process. It's Yeah. a big process of I mean, learning because the funny thing is, her mom, she'll call me. So do you know what she's packing? I'm like, no. And then and she will say, I said, well, and then, her mom will say, so far, I don't think she's like, girls will behave the way they want to, right? So Yep, her mom will exactly. feel the same way that like she Yep. doesn't plan ahead of time what she has to, because her mom is also concerned that she was coming here Yes. first time to our family and what she's going to look like and all that. So she said, have you told her? I'm like, you're the mom. She says, no, she Tell doesn't her. listen to me. So she said, I don't know if I've been telling her, but I don't think she's done anything. Maybe if you tell her, she will listen. So it's like, It's quite interesting. I know. So I said, It's well, very I've told interesting. her that all eyes are going to be on you since they're going to see you first time after marriage. So hopefully she'll understand that she has to plan accordingly, which she did to some extent. Yes. So, I mean, yeah, you say it, but if you don't hint, then again, it's a bad thing because then you have not given her a heads up. And all of a sudden you're expecting that she should look a certain way. So that's not fair either. So, I think the way you would talk about this would be the same way you talk about it to your own child. If my yeah, child I was mean, doing you let something, I would them let her know, know, and then it's her choice to go this way or that way, and then right? deal with the consequences or repercussions, whatever may be. Exactly. So you, It is, but I think based on the relationship, if it's a daughter versus a daughter-in-law, there's more things you could still say a little to your daughter than you can say to your daughter-in-law. That is true. But anyway, right? It's just Apart how the I from- mean, world works. nowadays, what I do is I Mm. let her know, but I don't expect. So I let her know. So it's my duty. I did it. I let her know that you're going to an And then event you where walk away. there is going to Yep. be eyes are going to be on you. And in our culture, we don't wear very revealing clothes. Now it's up to her how much she wants to follow. Yeah, exactly. And if she doesn't, she doesn't. If she does, that's great. Hmm. Even though the funny thing is, poor thing, she tried to wear all covered, whatever. And then my own And he niece is wearing all comes- revealing clothes. So I was like, oh my God, this was not good. Yeah, but you have to be conservative, right? Yeah, that's why Yeah. it's a very difficult line. Because But she wouldn't say, but then my son will say, Mom, you're fussing about all this and look at Surbi, what is she Mhm. wearing? Mhm. So that's But why, yeah, and it's up for me to understand that, hey, you know what? This is the way it is. So I shouldn't be as concerned about her clothing and just back off a little bit. So, so the point anyway. is, so you look at it from her perspective. The point is that she has not seen all this culture, right? But at the same time, if she was an open-minded person, she would also understand that, hey, Yeah. I'm going to a different culture and it's okay to accept. Mhm. And it's the same thing with language, right? Because she was raised there, she understands Hindi, but she's not comfortable speaking it. And when my relatives tell me that, why doesn't she learn Hindi? And I have to explain to them that, well, she knows Spanish, she knows English, she knows so many other languages. How many languages can I expect her to know? Plus, then I tell them to relate, like, okay, if you understand Marathi, and if somebody told you to speak Marathi, would you be able to speak fluently? It's the same thing with English. Kids in English medium school,
are not comfortable speaking English all the time anymore. I mean, now they are more speaking, but back when I went to convent school, we used to go speak English in school, and at home we wouldn't be comfortable speaking in English. It's one of those things, you know the language, but to speak it fluently, it takes that little comfort level. Mhm. So bottom line, what I'm saying is when you apply Syadvad, you are able to prioritize a little better because you know that, okay, this person has this strength, this weakness, there's so many different gun, right? Anant Tarbatmak, Anant Gun, right? So like now you can choose what do you want to emphasize. You have a choice of emphasizing the positives or emphasizing the negatives. So in life, you could choose to remember all the good things that people did to you and not focus on the bad things, and you'll be happy. That's what I tell people when they say, my mother-in-law was a bit strict, or at least she was known to be. So what is the raz of me taking so good care of her and not minding? I'm like, because whenever she said anything mean to me, I forgot it the next moment. So I have no reason to be unhappy about it. But whatever was nice, I do remember it. And that's the best way to be happy. There's plenty of people who will remember all the negatives somebody did to them. And that's the general rule, they say. You can be very nice to somebody 100 times. At that one time you say something bad to them, that's all they Yep. will remember. But we don't want to be. We are not the average people. Remember? We are we are the top 1%. So we don't want to be doing what the bhed chal, what everybody else does. Okay. मैम एक And that's चीज what the हाँ बताइए. हाँ, जैसे अनेकांतवाद तो हम अभी जैन दर्शन के अनुसार पढ़ने लगे हैं, लेकिन हाँ, हाँ. जैसे कहा जाता है, मैं भी अपने बच्चों को समझाती थी, जैसे अपन को हमारे बच्चों को कभी संस्कार देने होते हैं कि कभी झगड़ा होता है बच्चों में, तो हम ऐसे कहते थे, आप लोगों ने भी कहा होगा कि कभी भी ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, तुम उसकी जगह अपने आप को रख के देखो। ऐसे जैसे हम बोलते हैं कि कभी कुछ झगड़ा होता है, हम बच्चों से बोल देते थे ना कि अरे तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम उसकी जगह अपने आप को रख के देखो, फिर तुम्हें कैसा महसूस होगा, तुम उसको ऐसे बोलते हो, उसको भी खराब लगेगा ना। तो ये चीज भी क्या अनेकांतवादी होती है? नहीं, वो No. चीज सही है, पर it's something different. So That is more उसमें about empathy. yeah, It When is you put not. yourself about in other empathy. people's shoes. It's not Right. about description, right? Right, Of right. a quality. उसमें गुण ये का है कि सपोज तुम्हारा भाई उससे लड़ रहा है, तो उस दिन तो he is obviously hating the brother, right? तो बोलो, think about the other times when he did so much sacrifice for you. तुमको कुछ इतना दूर से लाना तो उसने लाके दिया था कि नहीं? तो उसमें वो गुण भी तो है to take care of you. Even though right now you're only looking at the thing that he's being mean to you, he's teasing you. Like So it's basically describing just this afternoon it happened. Like I have two boys, right? So the older one always teases the younger one, what he cannot do, whatever, they'll just try to be sarcastic. So then today I said, okay, no negativity. And your punishment is that you say 10 good things about your brother. To explain that, yes, you're focusing on the negative, or, I mean, of course, they were doing it in a teasing manner, but still, the point is you're pointing out his weakness. Now it's time you talk about his strengths. And when you do that, then you cover it up. The weakness is over the strengths of somebody. And that's a good exercise to do once in a while, even for husband and wife, even though it seems impractical. So it is really more about quality, gunya dharam of a dravya. Yeah. That is when we Actually, refer to Prabhaji, those this concepts. Yes. thing you said about think of your husband also, it's the reason you will continue to stay married to your husband. Yeah, exactly. If he Otherwise, didn't a have long time anything, then ago, you're done.
when I that feel actually angry, that I reminds think me. This about, was exactly what Neetu Singh and Rishi Kapoor. Rishi Kapoor is no more, but one of the interviews I saw theirs, and I didn't know, but I guess Rishi Kapoor was supposed to be very annoying person. He would come late or blame others or get irritated, all the whatever. So this one interviewer was asking Neetu Singh that he's like this, and how do you tolerate him? And have you ever, like, this is a fun question, like, have you ever thought ki just this is it, I'm going away, like I'm quitting, I'm taking divorce from you, whatever, that was the question. And Neetu Singh said, like, oh, every single day. So, and then she said, but there's obviously something about him that I like, and that's why I'm still with him. So yes, I mean, there can be some things that are irritating about your spouse that every day you may feel, oh, I don't need to be with this guy. But yet if you sometimes in your back of your mind, there is something nice about him that you like, which is why you're still together. and the second thing to think for that, You froze. and they are still there. So, because we are also like that, no? That's how they yeah, are. exactly. Yes. But So that's these are all the off things, topic. But practical things to learn from Anikant and Syadvat. Okay. So yes. then we have Priyaji today. Okay, let's start, Priyaji. जी जिनेंद्र सभी को आज मेरा वाइवा है, आई मीन गंडर है, जो मैं क्रमबद्ध पर्याय के स्टार्टिंग के कुछ पेजेस से कर रही हूँ, जैसे 15 to 25 पेजेस के इसमें से कवर कर रही हूँ. सो एक्चुअली मेरी समरी लिखी हुई है, आई एम जस्ट डूइंग इन दैट. सो क्रमबद्ध पर्याय, सो क्रमबद्ध पर्याय से आशय यह है कि इस परिणमनशील जगत की परिणमन व्यवस्था को क्रम नियमित है. जगत में जो भी परिणमन निरंतर हो रहा है वह सब एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित रूप से हो रहा है. एकदम व्यवस्थित दिखाई जाने वाली किसी रईस की कोठरी जिस प्रकार पूर्ण नियोजित एवं व्यवस्थित होती है, उसी प्रकार अव्यवस्थित दिखाई जाने वाली किसी गरीब की झोंपड़ी भी अनियोजन वाले अव्यवस्थित नहीं, वह भी एक व्यवस्थित ही होती है, अपितु वह पूर्णतः नियोजित और व्यवस्थित ही होती है. मतलब चाहे वो गरीब की कोठरी जो अव्यवस्थित होती है, हम उसको अव्यवस्थित नहीं बोल सकते, वो एक व्यवस्थित की तरह ही होती है. जिस प्रकार उक्त अव्यवस्थित दिखाने वाली व्यवस्थित भी पूर्ण निश्चय और व्यवस्थित होती है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण द्रव्यों का अव्यवस्थित सा दिखाई देने वाला परिणमन भी पूर्ण निश्चय से व्यवस्थित ही होता है. जीव क्रम नियमित ऐसा परिणामों से उत्पन्न होता हुआ भी जीव ही होता है, अजीव नहीं. इसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही होता है, जीव नहीं. समस्त जीवों और अजीवों के परिणमन को ही क्रम नियमित अर्थात क्रमबद्ध कहा गया है. जीव और अजीव द्रव्यों के समूह का नाम ही तो विश्व अर्थात जगत है. इसलिए समस्त जगत का परिणमन को ही क्रमबद्ध कहा गया है. पर्याय सिर्फ क्रम से ही नहीं होती, अपितु वह नियमित क्रम से भी होती है. आशय यह है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में, जिस निमित्त वह जिस पुरुषार्थ पूर्वक जिससे जैसे होनी है, उस द्रव्य की वह पर्याय उसी काल में, उसी निमित्त वह उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसे ही होती है, अन्यथा नहीं. यह नियम है. इस प्रकार निश्चय से जो द्रव्य को और उसकी समस्त पर्याय को जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शक करता है वह मिथ्या दृष्टि है. सर्वज्ञान त्रिकाली होते हैं, वह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को ही जानते हैं. केवल ज्ञान का विषय तो समस्त द्रव्य और उनकी त्रिकाल संबंधी समस्त पर्याय को जानता है.
प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपने क्रमबद्ध पर्याय का करता है और कोई नहीं। हमें अपने पर्याय में कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ सहज हो रहा है और होता रहेगा। अल्टीमेटली जीव does for itself what it is destined, but not for others. And in the same way, others don't do anything to other जीव. And all this are predetermined. सब कुछ क्रमबद्ध है। जब हम किसी भी प्रकार का भार नहीं लेते हैं किसी कार्य का, तो वह अपने आप अपने नेचुरल स्टेट में आ जाता है और सब कुछ क्रमबद्ध के हिसाब से सहजता से होती है। ज्ञान अपने प्रत्येक पर्याय खुद करता है, किसी और की कोई सहायता या सलाह नहीं लेता, वह स्व कार्य करता है। ज्ञान की योग्यता है ज्ञान में आने की, और ज्ञान की योग्यता है ज्ञान को जानने की। मतलब जो ज्ञेय होता है वो है ऑब्जेक्ट, जो चीज है उसके बारे में हम ज्ञान के थ्रू ही जान सकते हैं, बट विदाउट ज्ञान हम ज्ञेय को नहीं जान सकते। दैट इज द एक्चुअल मीन। क्रमबद्ध पर्याय makes us understand that the things are happening but we are not doing. It's all done, मतलब सब कुछ सेट है, मतलब डिटरमाइंड है, वो सब अपने आप हो रहा है, जस्ट वी आर एक्टिंग ऑन दैट। से ज्ञान एक स्वतंत्र है। इससे यह सिद्ध है कि ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, अतः अपितु ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है। फिर आता है पुरुषार्थ, स्वभाव, काल, नियत और कर्म का अभाव। यह 5 समवायों का एक साथ ही पर्याय में आ जाता है। मतलब इन 5 समवायों के साथ ही पर्याय क्रमबद्ध होता है। अगर एक भी इसमें छूटा तो इट इज लाइक क्रमबद्ध नहीं हो सकता है। So these are some of the points of starting pages. So it's very big Very topic. good, very good. I know. No, but these are some very important points, and I want Yes. you guys to understand the exam is always going to be there because they don't have a choice, because it's an open book exam. They have to try to confuse you for you to understand how much you really understood the topic. So if you stick to the basics, like she made some points कि ज्ञेय के हिसाब से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान is independent of ज्ञेय, ठीक है। Same way, everything is predetermined. So now is whatever God seeing is what is happening, or what is already destined to happen is what God sees. So once you have your facts properly, then even if they ask you confusing questions, you go back to your notes. Okay, this is what it is. So now they're trying to confuse me by saying it is this way. So you read very carefully and answer those questions. Okay. So, okay. So अब मुझे ये बताइए कि give me an example where the gay is not there, but you can still have ज्ञान of it. मतलब जैसे बच्चा है, लाइक अ स्मॉल इन्फेंट, के पुराने कर्मों का, पुराने जो भी ज्ञान तो है उनमें, इवन दो दे डोंट हैव दैट विजन ऑफ ऑब्जेक्ट या कुछ भी नहीं है, बट स्टिल दे हैव अ ज्ञान, कि ज्ञान तो है उनमें विदाउट एनी गे। Yeah. I mean, they've brought some stuff with them. वो तो ठीक है, but it like more स्थूल example, like for example, you're dreaming and you're seeing things. There's physically nothing in front of you. Still, you're able to have ज्ञान of something, right? या फिर you don't have your mother in front of you, फिर भी आप उनको याद कर सकते हो। तो ये सामने नहीं है, फिर भी ऐसा हो सकता है, right? इवन इट कुड बी लाइक फोकसिंग ऑन आवर फ्यूचर, कि हमें क्या करना है, तो हम एक पिक्चर इमेजिन कर रहे हैं, दिस इज द अल्टीमेट गोल दैट वी हैव टू अचीव, right, वी हैव नॉट अचीव्ड। right.
Okay, so I think Bindu is asking if anybody remembers the page number where they talked about five samvais. If someone knows offhand, let her know. It's in first 5 pages of the book. That's what I remember. I don't have the book with me, but because I'd done the summary, it's in the first Okay. 5 pages. Page Thank you, 30, Dolly ji. 30, Binduji. Thank you, Priya. Thank you. Okay. All right. Last. So, पांच समवाय फिर बोली दीजिए आप प्रिया जी. Even though that may not have been part of your summary. Part of your... यस मैम देख 5 समवायों में स्वभाव है, पुरुषार्थ है, अवितत्व, काललब्धि और निमित्त. आई थिंक दिस इज डिफरेंट मैम. 5 समवाय ठीक है, yeah. स्वभाव, काल, होनहार, there is पुरुषार्थ, different words. So देखो, पुरुषार्थ is there, नियति, होनहार, and what is the third word? They all mean the same thing. यस यस Bhavitavya. Bhavitavya is the one she used, right? Those three are the same thing. So don't be confused. You may hear different ones at different times. So Bhavitavyata, Niyati, and Honhar. Those three mean the same thing. And then the rest four, Swabhav, Kal, Purusharth, and Nimitt. और कर्म. Right? Okay. Okay. So the last question for you is, what difference has it made in your life after studying Prabhupada? A lot of difference मैम, lot of difference. मतलब पहले ऐसे होता था, कोई भी चीज में व्याकुलता होती थी, लाइक कब होगी चीज, कब होगा. जैसे बच्चों को लेके भी, लाइक स्पेशली माय यंगर वन, he takes time to understand the things, but when he understands, he is very much properly he is on that. तो स्टार्टिंग में मुझे ये व्याकुलता होती थी, लाइक why he is taking so much of time, why he is not understanding. After reading this, I'm like, क्रमबद्ध है, when he will understand why I am getting so much व्याकुल. And even in कोई भी situations में, जैसे कि वो अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं हो रहा है या वो रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, तो आई एम लाइक, व्हाई आई एम वर्किंग सो हार्ड, आई एम डूइंग एवरीथिंग, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग दैट रिजल्ट, वेयर आई एम लैकिंग. तो नाउ आई एम सो मच काम कि मुझे कहीं पे भी कोई व्याकुलता नहीं है. इट इज लाइक जस्ट आई एम डूइंग माय पार्ट. जब जो चीज होना होगा, दैट विल हैपन. आई एम जस्ट डूइंग माय थिंग कि आज ये चीज करना है, इसका रिजल्ट आएगा, दैट विल बी डेस्टिन्ड, दैट विल कम व्हेन इट हैज टू कम. आई एम नॉट वरीड अबाउट इट. So I'm so much peace now in this thing. And that is what is important. You leave your life on autopilot mode. It's just happening and you just flow along with it. And that is the ultimate, like what you will feel peaceful with, right? So, hamare paas mein aur kitne gandhar hai today? 2 more, right? I think Seema ji and That's then it. Megha ji. Okay. Prabha ji, I have a question. Now, this Krambat Paryay that we are talking about, is this Prayojan Bhut because it is decreasing our rag? Yes, of course, it's very prayojan. क्योंकि समय राग दर्शन कम के हो रहा लिए है. क्रमबद्ध पे श्रद्धा होना बहुत जरूरी है. आई थिंक मैम राग से ज्यादा ये जो व्याकुलता होती है वो बहुत कम हो जाती है. बहुत कम हो जाती है. So the third factor कि सुख होता है, दुख दूर होता है. So it is satisfying that. Got it. I'm just trying to now apply, like, you know, what we have learned. So that's all. मैम वन क्वेश्चन मैम, जैसे कि क्रमबद्ध पे हम ट्रस्ट करने लगे, रिसेंटली हमने क्रमबद्ध कंप्लीट किया तो मुझे क्रमबद्ध से काफी लगा कि हाँ आकुलता कम हुई. लेकिन रिसेंटली अभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मेरे बेटे के फ्रेंड के ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया और मतलब वो खत्म हो गया स्पॉट पर ही. 21 ईयर का बच्चा था वो, और ड्रिंक एंड ड्राइव का केस था. सीट बेल्ट भी नहीं लगाया था उसने, और रात को 2:30 टाइम था और वो घर से बाहर अपने He's frozen. Yeah, I think उसका थोड़ा इंटरनेट गड़बड़ हो रहा है. Maybe turn off the video and talk. She probably cannot hear us because her internet is not well.
That's okay. She can tell her story after Seema ji wants to go next. Yes. Okay, go ahead. We will let her take her story later. You all could hear me. Do you hear me, Hemal ji? Yes. Yeah. Okay, good. So I'll start my grandha. तो मैं घर कर रही हूँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक का चौथा अधिकार मिथ्या एक सेकंड, सिंस आपने शुरू नहीं किया है, आपका फ्रोज हो गया था अमिता जी, आप एक सेकंड कुछ फ्यू सेकंड्स लेके फिनिश कर लो, आप क्या बता रहे थे? ओके श्योर। आगे अमिता जी। म्यूटेड हो अमिता जी। तो मैम वहां पर थोड़ी सी क्रमबद्ध से श्रद्धा मेरी थोड़ी सी डगमगाई कि यदि वो बच्चा सीट बेल्ट लगाया होता और ड्रिंक एंड मतलब सब ड्रिंक व्रिंक नहीं किया होता और थोड़ा सा उसने इन सब चीजों का ध्यान रखा होता तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता, वो बच्चा बच जाता। देखो, यहाँ क्रमबद्ध कैसे लगाना है, वो बात तो सही है कि अगर इसका ऐसा हुआ है तो हम दूसरे बच्चों को तो यही समझाएंगे कि अगर उसने पिया नहीं होता, सीट बेल्ट लगाया होता तो आज वो बच जाता, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपको अंदर से क्या समझना है, इसका ये ही इसी निमित्त से इसकी मृत्यु होनी क्रमबद्ध में थी, इसीलिए उसने पिया, इसीलिए उस दिन उसकी माँ के मना करने पर भी वो चला गया और सीट बेल्ट भी नहीं लगाया, क्योंकि यही क्रम नियमित होना था। बट मैम और इस तरह यही हम अपने उसके बच्चों को माँ नहीं बाप को समझेंगे। भी इसी से पीस लेनी पड़ेगी, हाँ ताकि माँ बाप उस बच्चे को हेट नहीं करें। उनके लिए वही सही है कि वो ये समझें कि इस बच्चे की इसी क्रम से इसी समय इसी तरीके से मृत्यु होनी निश्चित थी, हाँ Ma'am, this हम can तो be समझ a ताकि सकते वो हैं जिंदगी भर अपने कि बेटे को आयु कर्म। दोष नहीं दें। ma'am, can this समझे be a ना? good example of Akal Mrityu? Yes, it can be, but remember we learned अकाल मृत्यु is very relative. Relative to what? कि normally हम सोचते हैं कम से कम 80-90 साल कोई जिए, अब ये 80-90 नहीं 21 पे चला गया। In that respect, yes, but in respect of क्रमबद्ध, no, उसका ये निश्चित था कि इसी समय इसी जगह इसी तरीके से उसको जाना था। तो और इसलिए ना वो हमारे बच्चे तो हमसे ये आर्ग्यू करते हैं कि मम्मी क्रमबद्ध से कैसे आप इस चीज को वो कर सकते हो, मतलब गलत करोगी तो आपके साथ गलत होगा, इसमें आप ये कैसे लगा सकते हो कि क्रमबद्ध ही होगा, सब कुछ क्रमबद्ध है, जो देखो, अच्छा करेगा उसके साथ भी वो जो गलत होगा उसने ऐसे। गलत किया उसके साथ गलत हुआ, वो बात सही है, ठीक है, उसमें कोई क्रमबद्ध डजंट से कि वहां रूल्स नहीं अप्लाई होंगे, ठीक है ना। पर ये भी बात सत्य है कि आपका बेटा सर्वगुण संपन्न था, किसी का बेटा पिया भी नहीं, कुछ भी नहीं, अगर वो भी चले उसकी जाते मौत हैं। उसी निमित्त से लिखी है, तो जिसने कभी नहीं पिया वो बाई चांस कोई रॉन्ग कंपनी के में आके उसी दिन पी लेगा, उसी समय चला जाएगा कार लेकर के सीट बेल्ट, और उसकी मृत्यु अगर वैसे ही लिखी है क्रमबद्ध में तो हो जाएगा वैसे। जैसा कि हम देखते हैं प्लेन ट्रेन एक्सीडेंट्स में कई लोग जो जाने वाले थे उनको कोई कारण से रुकना पड़ गया, जो नहीं जाने वाले थे उनका सडनली प्रोग्राम बन गया, क्यों क्रमबद्ध में उनकी ही मौत लिखी थी, दूसरे वाले की नहीं लिखी थी। प्रभा और जी, दूसरे वाला जो उतर गया हो सकता है उतरते ही कार एक्सीडेंट में मर गया, क्योंकि उसकी प्लेन एक्सीडेंट से नहीं लिखी थी। हाँ Prabha ji, I have one kind of related question. Now, how do you explain that in context of Udirna of Ayu Karma? okay, so suppose a month ago उसकी मम्मी उसकी कुंडली किसी को दिखाते ज्योतिष को, तो हो सकता है कि ज्योतिष बोलेगा हाँ इसकी तो 40 साल की उम्र है या 80 जो भी है। नाउ when this accident happened, 21 से 80 के बीच में जितनी एज थी
it gets absorbed within that few moments. वो कर्म एक साथ उदीर्ण होके उसकी खत्म हो जाते हैं. So that Jyotish became wrong in this situation. So you understand? Yes. Because he cannot see कर्मों की उदीर्ण. उसको तो नक्षत्र से ये दिखेगा कि currently this is the status of his hand रेखा बोल दो या whatever moon, sun के positions, whatever he is able to see from his knowledge. That's what he would see. Only Kevali can see everything, which is कि इस तरह से इसके कर्म की उदीर्ण होके ये जल्दी चला जाए. मैम कई बार ज्योतिष लोग भी कहते हैं कि यहाँ पे 40 के आसपास इसकी मृत्यु का योग है, आप ये हाँ, but अनुष्ठान they cannot tell कराइए. you for sure. ज्योतिष कभी भी हाँ पक्का नहीं बताते हैं. वो कहते हैं खतरा हाँ, है, उनको वो उतना योग है दिखता बोलते है, हैं. but हाँ then they don't know whether it's going to happen or not. हाँ, वही मिड लाइफ क्राइसिस योग है और आप ये सब अनुष्ठान कराएं तो ये योग टल जाएगा, ऐसे हाँ, करके पर ये बोलते हैं. अनुष्ठान से योग नहीं टलते हैं. नहीं, अगर that I know, क्रमबद्ध में है तो just वही होके रहता है. ऐसा. अब क्रमबद्ध में तो है कि उसको जाना है. अब तुम 10 अनुष्ठान करा लो तो बोलो कुछ होगा? नहीं होगा. नहीं, that's what I'm और saying कि क्रमबद्ध में अगर है कि उसका वो टलना है, उस टाइम नहीं मृत्यु होनी है, तो आप सोच लोगे कि वो अनुष्ठान कराया इसलिए हो गया. और What is उसमें फिर क्या सत्य? Anushtan? I'm sorry. Some people believe, okay, do this puja, donate so much to the Brahman, and then you will not have that problem. That is only mithya, no? We learnt about that. It is, It's yes, only yeah. mithya. Heath Mithyatva. Oh, that's Yes. Ma'am, this Jyotish, this term we have come across while we are reading, and Jyotish, are these two similar terms, the same meaning? I think they're separate. I think they're totally separate. And how much do you believe in? I mean, how much should one believe in astrology, palmistry, all these things? Well, they are sciences. There's nothing wrong in believing that they exist. But trusting them for your happiness is not a good idea. That is mithya. Yes. Because if you believe in what Bhagwan has said, you believe in Krambat Paryay, you believe in ownership of your own sukh, then all that is just Yes. whatever. Because we can even change our karmas with our efforts. Then all that, I don't know how that fits. It wouldn't be right. Yes, the better thing is to, with this knowledge, make yourself strong enough that you don't have to depend. Remember, we said it's about ultimate independence. We are talking about even not depending on your indriya. तो फिर वो ज्योतिष और डॉक्टर तो किस मुखेत की बोली है, right? So let's say, okay, चलो सीमा जी आप. Yeah. Okay, so I'll start my summary. Okay, so today I'm going to be doing the Gandhar on my प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्या चारित्र का स्वरूप. तो यहाँ पे टोडरमल बताते हैं कि मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं. वो कषाय भावों को मिथ्या चारित्र कहते हैं क्योंकि कषाय भावों के होने पर जीव भाव जो जानना देखना है वह उस रूप प्रवृत्ति नहीं करता है बल्कि विभाग रूप प्रवर्तता है. और मिथ्या चारित्र में राग द्वेष होते हैं और तथा वे राग द्वेष विस्तार को प्राप्त होते हैं. अब यहाँ इष्ट अनिष्ट की गणना को मिथ्या कहा है, उसका प्ररूपण पंडित जी इस तरह से करते हैं कि जो अपने को सुखदायक उपकारी हो वह जीव उसे इष्ट मानता है और मतलब उसी को ही कहते हैं, और जो अपने को दुखदायक या अपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं. पर ऐसा तो है नहीं. लोक में सभी पदार्थ अपने भाग के करता है, कोई किसी को सुख दुखदायक नहीं होता. इसमें इष्टपना या अनिष्टपना तो है ही नहीं. और यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ एक को इष्ट होता वह सभी को इष्ट होता, और जो पदार्थ एक को अनिष्ट होता तो वो सभी को अनिष्ट होता. और परंतु ऐसा भी नहीं है. तो निष्कर्ष ये निकलता है कि यह जीव कल्पना द्वारा अपने राग की कषाय परिणाम में अपने इष्ट अनिष्ट मानता है, और ये कल्पना ही जी है. इसलिए इष्ट अनिष्ट की कल्पना को मिथ्या कहा है.
फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी किसी को रेन अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती। जैसे कोई कुम्हार ने घड़ा बनाया, जो पॉट्स बनाता है, तो उसको रेन नहीं अच्छी, क्योंकि वो चाहता है कि उसके पॉट सूख जाए। और चांद जिसने फसल उगाई है, उसको रेन अच्छी लगती है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी फसल पे इरिगेशन हो, बारिश हो। तो इस तरह से सेम, पर रेन तो रेन है, और रेन का उससे कुछ लेना देना, पर दोनों ने अपने हिसाब से कल्पना करी और उसमें ईश्वर ने बुद्धि रखी। फिर उसके बाद राग द्वेष के विधान और विस्तार के बारे में बताया है। तो जो जीव एक के प्रति राग तथा द्वेष करता है, जीव परंपरा से अनंतों के प्रति राग और द्वेष करता है। ऐसे अनंत राग द्वेष की प्रकटता जो देखने में नहीं आती, मतलब वो दिखे ना, परंतु बड़ी सूक्ष्मता से विचार करें तो बुद्धि पूर्वक अनंतों के प्रति राग द्वेष का संस्कार उसके बीच में पड़ा ही रहता है, उसमें जीव में, उस बुद्धि में। तो इसके बाद फिर क्या, ज्ञानी जीव कषाय भावों, ज्ञानी जीव के जो कषाय भाव होते हैं, अभी तो अपन मिथ्या ज्ञानी की बात कर रहे थे। अब इसके बारे में बताया कि जो ज्ञान जीव हैं, सम्यक ज्ञानी, उनके कषाय भाव को भी मिथ्या चारित्र कहेंगे। तो ऐसा है कि ज्ञानी जीव के कषाय भावों को मिथ्या चारित्र नहीं कहते हैं, क्योंकि वे कषाय भावों को गे जानकर जानने देखो स्वभाव रूप ही प्रवृत्ति करते हैं। और ज्ञानी की कषाय भाव को असंयम या अचारित्र कहते हैं, मिथ्या चारित्र नहीं कहते। फिर इसके बाद मोह की महिमा बताई है। तो उसमें है कि मोह के कारण, इसमें मोह का महात्म्य, मतलब महिमा माने महात्म्य, उसका विकराल रूप, उसका चित्रण किया है। तो मोह के कारण प्राप्त पर्याय रूप परिणमन जो जीव का होता है, वह बिना सिखाए ही पाया जाता है। जैसे ये शरीर मैं हूँ, वो ऐसा मानता है, और ये मिथ्याज्ञानिक भाव अनादि से जीव के पाए जाते हैं। इनके कारण बिना सिखाए ही मोह के उदय से पर पदार्थों में वह एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व बुद्धि करता है, और स्वरूप परिणमन भी होता है। शरीर को और उसके संयोगों को भी वो अपना ही मानता है। ये उसका एग्जाम्पल हो गया। फिर शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होने पर उनको भिन्न अनुभव नहीं करता। मनुष्य आदि को सत्य विचार का कारण मिलने पर भी सम्यक मन नहीं करता। जैसे हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में हमें इतना अच्छा स्वाध्याय के भी अवसर मिलते हैं, पर कई लोग होते हैं, उनको इतना जैन कुल भी मिल गया, फिर भी मंदिर में उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहता है, वो उसका भी लाभ नहीं लेते, और इस तरह से वो मिथ्या रूप परिणमन करते रहते हैं। फिर श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने वे बारंबार समझाए तो भी ये कुछ विचार नहीं करता। तो वो बार बार इतना सुलभ, इतना आसानी से उपलब्ध है, तो उसको उसकी दुर्लभता ही नहीं समझ में आती। और यदि आ भी गई तो फिर वो उसके पर तत्व विचार करके निर्णय नहीं करता। फिर शरीर आत्मा भिन्न भिन्न भाषित होने भी एक मानता है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए और घर में या किसी रिलेटिव के, साफ समझ में आता है कि आत्मा चली गई, शरीर यहाँ धरा का धरा रह गया, मतलब इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। तो फिर भी थोड़े देर के लिए उसमें आता है शमशान वैराग्य, परंतु वापस फिर वो इसी रूप हो जाता है, शरीर और आत्मा को एक मानने लगता है। तो पर ये चीज भी ज्यादा देर लास्ट नहीं करती है। फिर मरण अवश्य होगा, ऐसा जानने पर भी कुछ कर्तव्य नहीं करता। यहाँ पे भी वही है कि सबका मरण तो देखते हुए उसको लगता है कि दूसरों का होगा, पर मेरा तो नहीं होगा, उसको यही लगता है। फिर परलोक में जाना प्रत्यक्ष जानने पर भी उसके अर्थ कुछ प्रयत्न नहीं करता। अब सबको पता है कि मृत्यु होगी, और कुछ लोग मान लो पढ़ने भी लग गए, स्वाध्याय भी करने लग गए, उससे सबको समझ में आ गया, अपने से सामने किसकों की हो रही है, फिर इससे समझ में तो आ गया कि मेरी भी होगी। पर फिर भी इस लोक की सामग्री का ही करते रहता है। परलोक के मतलब जब हम परलोक सुधारेंगे, वहां पे तो हमारे पुण्य, पाप, कर्म, या फिर हमारा विशुद्धि के कारण जो हमारा सम्यक मन हुआ या सम्यक दर्शन हुआ, वो सब हमारे साथ जा सकता है। यदि हम उस काल में मरे, सम्यक दर्शन के काल में, तो हमारे साथ जा सकता है। तो उस रूप भी प्रयत्न नहीं करता। फिर विषय कषाय परिणति तथा हिंसादि द्वारा स्वयं दुखी होता है, तो भी उन्हीं में प्रवर्तता है। तो मतलब ना ज्यादा उसकी विषय कषाय रूप परिणति होती है कि खुद भी अपने को भी नहीं छोड़ता, खुद भी मर पच के भी वो करता है। जैसे मान लो टेररिस्ट, अभी उन्होंने किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब अटैक,
तो खुद को भी उसमें कर दिया, मतलब द टोटली प्लेन वेंट ऑन द दिस थिंग इनसाइड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो खुद भी मर गए और ये भी मर गए उनके साथ। तो इतनी ज्यादा कष्ट है उनमें। तो एनीवे, तो कषायों को प्रत्यक्ष दुख रूप जानकर भी उन्हीं में प्रवृत्ति करता है कि प्रकार सब प्रकार से अन्यथा श्रद्धान ज्ञान आचरण है, और ये सब मोह की ही महिमा है। तो कंक्लूजन इस तरह से निकलता है इसका कि मतलब अकॉर्डिंग टू टोडरमल जी और हमारे भी ये है कि इस प्रकार ये जीव अभी से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न वाले कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, और यही भावों के बीच है, अन्य कोई नहीं। तो लास्ट में फिर टोडरमल जी हमें कहते हैं अत्यंत मतलब हमको अच्छे से संबोधित करके कहते हैं, हे भव्य, तो यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो इन मिथ्या दर्शन आदि विभावों से भावों का अभाव करो, और यही कार्य करने लायक है, और ऐसा करने से हमारा परम कल्याण होगा। तो दैट वाज माय समरी। वेरी गुड। ओके, सो आप का पहला क्वेश्चन, यस मैम। मोह की महिमा का एग्जाम्पल दो। खुद का दे सकते हो, किसी और का दे सकते हो। वो वर्ल्ड ट्रेड का तो दिया आपने, पर उसमें वो एक्चुअली एग्जैक्टली मोह की महिमा कैसे हुई नहीं वो नहीं था। समझ आया। सो थोड़ा और हाँ क्लियर एग्जाम्पल, जैसे कि हाँ हाँ हाँ। तो जैसे एक मेरा रियल एग्जाम्पल देती हूँ। तो मेरे पड़ोसी, ये शायद मैं पहले भी दे चुकी होंगी पर याद ही फिर होता है। तो हमारे और पड़ोसी के बीच में जो फेंस है वो कॉमन फेंस होती है। तो दोनों साइड कॉमन फेंस होती है, तो एक साइड वाले कॉमन फेंस, दोनों जगह कॉमन फेंस का एग्रीमेंट होता है कि यस वी विल जस्ट स्प्लिट इनटू टू एंड देन वी गो इनटू राइटिंग एग्रीमेंट। So besides having a written agreement, I have hired a contractor and got everything done. And when it came to giving the money, splitting the money, even though I had the contract, I did everything, took care of every little bit that is involved in the project. But towards the end, when it was the turn for that person to give us the money, they did not turn up and give the money. In fact, they just pretended as if nothing happened. So for me, इस सिचुएशन में ऐसा था कि अब मैं इसको जानकर बस मतलब कि ये हुआ, ये मतलब दो स्थिति बनती है ना मुंह की उसमें। एक तो ये सोच चाहिए कि हम इसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके उससे हम द्वेष करने लगे पड़ोसी से, या फिर हम उसे मात्र जाने कि ऐसा हुआ। तो पूरा देर क्योंकि ये पढ़ा लिखा है, मैं मेरी बुद्धि मेरे को यही समझाती रही कि बस इसको जानो ऐसा हुआ, तुमने पूर्व में ऐसा इस जीव के साथ किया होगा, इसलिए ये परिस्थिति बनी है सीमा है। तो इसमें अब तुम राग द्वेष करके अपनी इसकी संतति विस्तार मत करो इसका। तो परंतु क्या होता था, कभी कभी जब मैं फैंस देखती थी तो मुझे याद आ जाता था, और अंदर से थोड़ा क्रोध भी आता था। ऐसे लगता था कि मतलब अगली बार जब करेंगे ना फैंस प्रोजेक्ट, तो मैं जाऊंगी ही नहीं उनको, मतलब आई विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ इट, लेट देम डू बिकॉज आई हैव डिड दिस टाइम, लेट देम डू दिस टाइम। बट आई नो यदि अगली बार भी करेंगे और अगल दम उनको गुस्सा आएगा, जो गुस्सा मुझे अभी आ रहा है तब वो उनको आएगा। तो इस तरह से सोचने जाए तो इसका कोई अंत ही नहीं है, और ये हम यदि मर गए इसी गुस्से को साथ लेके, इस परिणाम को, इस भाव को, तो अगले जन्म में भी हम चाहे सांप नेवला चाहे बिल्ली बन के एक दूसरों को पे क्रोध करते रहेंगे और एक दूसरे के पीछे भागते रहेंगे। तो अच्छा यही होगा कि अभी प्रतिक्रमण करके इसका यही वो कर दे, और इस तरह से मान लिया जाए कि ठीक है ये ऐसा ही होना, मतलब क्रमबद्ध में कह लो या जो है। तो इन्होंने जानबूझ के नहीं किया, ये ऐसा होना ही था, मेरे पाप कर्म का उदय था, तो मेरे लिए ये स्थिति बनी है। और इस तरह फिर मैंने एक एक करके सबके प्रतिक्रमण भी किए। सबको वो लोग तो मिच्छामि दुक्कडम जानते नहीं, वो तो तमिल है, तो फिर भी उनको सब भेजा व्हाट इज फॉरगिवनेस ऑल अबाउट एंड ऑल, और फिर भी अपनी तरफ से ही मान लिया, बिकॉज मैं उस प्रोसेस में अपने आप को ही सहजता में लाने की कोशिश। तो जो भी फीलिंग आप हुई, हाँ उसमें मोह का
कैसे रोल था बताओ। जो मेरी फीलिंग थी वो क्रोध था, और ये और क्रोध अग्रहित। किस तरह से क्यों आया, किससे मोह था? हाँ हाँ, एक मिनट। तो पहले तो अग्रहित मिथ्या चारित्र में क्रोध, मान, माया, लोभ और नौकषाय, ये सब आते हैं। और ये क्रोध मेरे को ये था कि हमने जब प्रॉपरली सेटल करके एग्रीमेंट साइन किया था कि जब प्रोजेक्ट हो जाएगा तो आप देंगे, तो आपने दिया नहीं। तो इस बात का था कि व्हेन देयर वाज एन एग्रीमेंट देन ही वाज सपोज्ड टू अबाइड बाय द एग्रीमेंट, व्हिच नहीं, ही अग्रीमेंट डिडंट। वगैरह भी छोड़ दो, मोह किससे था? अच्छा अच्छा, हाँ। तो मोह तो सोच लो पैसों से ही था, क्योंकि पैसे से स्प्लिट होने थे। बिल्कुल। तो उस समय तो मोह पैसे से था, क्योंकि इट वाज अ प्रोजेक्ट। इट वाज सम $2800 only on one side of fence, because I extended also. So I had to bear all the cost, and that was not a small amount. And I wasn't working at that time. So, you know, that was it. Basically, I wanted the fair payment. ये नहीं तब समझ में आता था कि ये भी पैसा बस है या विनिमय का साधन है अपना एक। ये जरूरी नहीं, अपने साथ तो जाएगा नहीं। पर जब अपने आप को समझे तो यही समझाते हैं कौन सा ये अपने साथ जाने वाला है। और जाते जाते भी सब कहते हैं ना, 70% तो सब अपना छोड़ के ही चले जाते हैं। जैसे मैं अपने आप को समझाती भी हूँ, पर मेरा बेटा पता क्या करता था, बैठ के वो बोलता था, मम्मी आपके तो नानूबंदी का उदय फिर से आ गया। हाँ, आप तो मिथ्याचार परिणमित हो गए। आपको तो अंदर क्रोध आया है, तभी आपको उन वो फैंस को देखते ही द्वेष आ जाता है। मैंने कहा यस इट इज ऑल राइट, बिकॉज ये ऐसा ही हो रहा है। मेरा जो सहज हो रहा है मैं तुम्हें बता रही हूँ, और ऐसा होता है। नाउ यू सी, जो भी जिनवाणी में लिखा है एकदम सही है, और आप वो उस रूप देख भी रहे हो मुझे। तो उसको भी इस बारे में बहुत कुछ पता चला। और वो इस तरह से जब बोलता है तो मुझे लगता है सच अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर माय किड्स, बिकॉज दे डोंट या सी मी अदरवाइज लाइक दिस, एंड नाउ दे आर सीइंग मी लाइक दिस। तो दे आर लाइक, क्योंकि काफी लोग मुझे पहले बोलते थे, सीमा आंटी आपको हमने कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। तो बच्चे भी बोलते थे ऐसे कैसे ये आपकी तारीफ कर रहे हैं ये वो। मैंने कहा देख लो अभी तो आया ना मुझे गुस्सा, क्योंकि मुझे अटैचमेंट था अपनी चीजों से या इन सब से, और मुझे उनसे अपेक्षा नहीं थी। अब पता चल गया कि नहीं, किसी से अपेक्षा कुछ करनी नहीं, और जो जैसा हो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, ऐसा ही होना था हमारे। Prabhaji, one other thing that I think in this scenario, the more is that the person is causing me trouble, that person की वजह से मुझे ये तकलीफ हो रही है. That is the other part of the moha. दैट्स वेरी Because गुड that is that So पॉइंट। let's say there was no money involved. नहीं नहीं, फिर वो जो आप बोल रहे हैं ना हेमल जी, वो वेरी करेक्ट है, क्योंकि कई बार अपन को लगता है वो जानबूझ के हमें परेशान कर रहा है। यू राइट। नहीं, पर मोह किससे है? आपको मोह की प्रॉब्लम है ना यहाँ पर तो। कई बार हमको अपने Then you पड़ोसी अच्छे pinpoint where लगते is हैं, the राइट। मोह. नहीं, हमारा मोह ये था कि हमें जैसे अपने पड़ोसी ठीक लगते थे, पर हमारा मोह भंग हो गया। अब हमें समझ में आ गया कि वो कभी भी कैसे भी बिहेव कर सकते हैं। तो हमें किसी के भी प्रति ये मान्यता जो की ना हमने, कल्पना कि ये अच्छे लोग हैं, अब हमारी कल्पना में अब हम ये भी ना करें कि वो बुरे हैं। तो हम जब अच्छे लगते थे तो थोड़ा राग था, अब ये तो द्वेष करने लगेंगे। तो ये राग द्वेष से दोनों से निकलने के लिए इसीलिए क्रमबद्ध का सहारा लिया, जिनवाणी का सहारा लेके अपन क्या कंक्लूड करते हैं कि ऐसा ही होना था, ऐसा ही मेरे भवितव्य में था। उनकी गलती नहीं है, मेरे पाप कर्म का उदय था। उल्टा मैं उनसे उनके लिए प्रतिक्रमण कर रही हूँ कि मैंने पिछले भव में कुछ ऐसा किया था, उसके कारण ऐसा हुआ है। तो आज मैं अपनी गलती के लिए और आगे इसकी संतति ना हो उसके लिए वो करती हूँ, और अगली बार यदि सेंस खराब होगी तो मैं आगे से जाके फिर से फिक्स कर दूंगी। Who cares? I don't want to even bother it with it. That is been तो वही है accounted कि for, that अपना 20%. मोह That is हमेशा the ध्यान yeah, what रखो कि कहाँ there है. is. What is? Sorry, ma'am. Please repeat the question. मैंने कहा कि वही इसी को एनालिसिस करना कि कहाँ कहाँ मेरा मोह मुझे अटका रहा बैठा हुआ है, हाँ हाँ। है, इज द प्रैक्टिस टू डू. ठीक है ना? वैसे ही हम कई चीजें करते हैं अपने. सपोज हमने अपनी स्टडी को प्रायोरिटी नहीं दी क्योंकि बच्चा बच्चा नीड्स अटेंशन, whatever the case may be, which is fine, but then you understand that it's because of my mood towards the child
that I'm ignoring what I need to do for myself and doing that. Recognizing is the first step. Change can come later, but if you don't recognize and you justify कि नहीं वो तो मेरी ड्यूटी है तो करना ही पड़ता है, ये है वो है, no. Recognize there is no such thing as करना पड़ता है. I have more so in my bhumika To right do all now these I'm doing. things. Yes. यस मैम, मोह के कारण होता है अच्छे से बच्चों के नहीं प्रति तो जो फिर हम मोह होता है। जिंदगी भर यही सोचते रहेंगे कि हमारी तो ड्यूटी, अरे कल आंख बंद हो गई, जिनके माँ बाप उनको 2-3 साल का छोड़ के मर गए, वो क्या जिए नहीं? No, no world is stopping for you. तभी तो जब बच्चे को बीमार होता है तो अपने मोह के कारण हम दुखी होते हैं, जबकि बिल्कुल उसकी बिल्कुल बीमारी उससे ही ठीक होगी, परंतु दुखी हम Exactly. हो रहे होते हैं। कई बार तो मेरी फ्रेंड है, वो हमेशा पता क्या कहती है, भगवान उसके सारे दुख मुझे दे दे पर उसको अच्छा कर दे, और फिर सारे उसको Right. सही में दुख भी हो जाता है, और उसको तो अभी कैंसर है मेरी फ्रेंड को भी। तो हम लाइक इसने पता नहीं कितना ज्यादा विश किया है कि बेचारी को आज कैंसर हो गया। तो हम लाइक ओ माय, आई विश आई कुड समहाउ टेल तो हर वो भी नॉट टू वही डू तो दैट। मोह की ही तो बात है ना। देखो, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि हम कितना कुछ सोच लेते हैं मोह के कारण, राइट? Yeah. और अभी इंडिया में बोलते हैं जितना कितना भी पैसा हो, पीपल को ग्रीड ही रहती है। क्यों? अपने बच्चों से मोह, फिर मोह। बच्चों के बाद में पोते पोती से मोह, उनके लिए छोड़ जाओ। अरे भाई, now then you think, I mean, now that we understand, we feel how foolish is that. वो अपने आत्मा का कल्याण तो नहीं कर रहे हैं और इधर उधर कमाने में लगे हुए हैं कि उनके बेटे को मिल जाए, बेटे के बाद पोते को मिल जाए, पोते के बाद who knows किसको मिल जाए। एंड वो जो खराब काम करेंगे उस पैसे से, उसमें आप निमित्त बनोगे क्योंकि आप छोड़ के गए। So you understand कितनी मोह की प्रॉब्लम है। So therefore, so Prabhaji, this is the one thing when I Yes. was reading that part of Moksha Marg Prakash, right, chapter 3. So in that, when they, so the moh is a result of, mithya drashti is a result of moh, or is it also a result of shayupsham of gnana varniya and darshana varniya moh karma? No. Or is that the Okay, दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्णीय से तो आपको सही ज्ञान नहीं मिला, बट Got द it. मोहनीय का कर्म का उदय इज क्योंकि आपने प्रीवियस जन्म में वो मिथ्या श्रद्धान को पोषण किया ना, इसलिए तो आपकी शुरू से समझ ही गलत है, श्रद्धा ही गलत है। अभी हम समझ सकते हैं कि इफ देयर इज समबडी वांटिंग टू स्पेयर फॉर हिज 6th generation, हाउ स्टूपिड इज ही? We didn't think like that until we understood all this. Right? Right. So Prabhaji, So it's what is moha the same as mithya? Moha is attachment. Attachment comes from wrong understanding. Is the result As of the wrong your understanding. it's a result of wrong understanding. As your understanding improves, the grip of moha gets loosened. But attachment is rag, so then is moha same as rag? Yes. If one word is moha, if you want to say it in 2 words, it's rag and dvesh. So the the kashan that results. you get are moha. And then if you want to say it in 4 words, it's krodh, man, maya, lobh. Correct. So mithya drashti then is really a result of moh, Yes. right? Mhm. And then we don't get our So knowledge I and want to, gyan because of this, of the suppression of gnana varni and darshana Right. So known. as you get gyan, you have the shraddha is improving and your monia karma gets looser and looser. ma'am, I Got it. came across something like this as per Rupa's question. तो जो मोह के 2 भेद हैं, दर्शन और चारित्र मोह। तो दर्शन मोह किससे होते हैं? अज्ञान से, अपने स्वरूप की अज्ञानता। अपने स्वरूप की अज्ञानता में क्या है कि हम जीव और अजीव की मिली-जुली पर्याय खुद मानते हैं, जैसे शरीर और आत्मा खुद मिला-जुला मैं हूँ या शरीर ही मैं हूँ। तो ये अज्ञान के कारण है। यदि मैं ये मानूं
कि ये आत्मा जो है ये मैं हूँ, मतलब इसमें हम बुद्धि करें, तो वो दर्शन का उपशम हो गया, उपशम हो गया, इच्छा हो गया। परंतु दूसरा जो चारित्र मोह है, वो दर्शन मोह के ही कारण उसका परिणाम है, राग द्वेष। तो यदि दर्शन मोह रहा तो उसकी संख्या और भी नहीं ज्यादा। नहीं, पर वो तो अलग मैटर हो गया। चारित्र मोह का यहाँ कोई रोल नहीं है। चारित्र मोह तो नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि ये समझ तो मैंने सच्ची प्रवचन होने में के। सुना विपिन सिंह शास्त्री के, तो मैं नहीं बता नहीं रही नहीं, हूँ, वो है ना। बात बराबर है, पर इनका जो रूपल का क्वेश्चन है उसके लिए वो आंसर नहीं है। वो सेपरेट मैटर अच्छा है। अच्छा वो ये है कि अच्छा। श्रद्धा सही होने के बावजूद भी हम क्यों ऐसे मिसबिहेव कर रहे हैं। वो उसका आंसर ये है क्योंकि श्रद्धा भी आपने सही कही, समय थोड़ी हुई नहीं मैम। नहीं नहीं, श्रद्धा सम्यक के बाद भी चारित्र मोह हो सकता है। नहीं, चारित्र चारित्र मोह तो मोहनीय कर्म रहेगा ना, अकेली अनंतानुबंधी गई, परंतु नहीं, वो तो वही आप देह रूप समझ नहीं रहे हो। पर परिणमन वो जाता है। आपका जो आंसर गलत नहीं है, रूपल के क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये मैं कह रही हूँ। si अपन कोई भी क्वेश्चन पे सारा डिटेल कोई और चीज का समझाने लगेंगे तो वो सही नहीं है। वो यहाँ पर अभी बात मोह की जब हम कर रहे हैं तो ये हम अटैचमेंट वाले मोह की अभी बात चल रही है। हम्म। तो देखो, चारित्र मोह तो होगा ही, वो श्रद्धा सही भी हो गई तो भी जो चारित्र मोह के जो कर्म आपके बाकी हैं वो उदय में आ रहे हैं, और उसके कारण जो हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है। अभी हम इस बात की कर रहे हैं कि पहली बात तो अभी हम सम्यक दृष्टि की बात नहीं चल रही है यहाँ करंटली। तो अब हम बात कर रहे हैं कि मोह हो रहा है, आपको बच्चे से मोह है। आपको लग रहा है मुझे बच्चे के कारण इतना कमा लेना चाहिए, या ये है। वो ड्यूटीज, हम ड्यूटी के नाम से उसको वो कर लेते हैं जस्टिफाई। पर मैम इसको उसको चारित्र मोह की रिकग्नाइज ये कैटेगरी में करना रखेंगे ना, है कि दोनों, कि अभी ये तो मुंह दोनों, जब कषाय तक में आप नहीं सम्यक संयोग हो दृष्टि नहीं हो जब तक दोनों है, गए। नॉट जस्ट चारित्र। पहले श्रद्धा नहीं ठीक नहीं नहीं, है तो फिर सम्यक चारित्र दृष्टि में। मिथ्या दृष्टि का नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि यदि हम मान लो इसमें रखें, अपने शास्त्र की भाषा में बोले, तो इसको चारित्र मोह ही कहेंगे ना, क्योंकि नोक विषय रूप हुआ, मतलब जो हमारे संयोग हुए, तो हमारा बेटा हुआ, बेटे से मोह हुआ है, राग है, तो वो चारित्र मोह में ही तो आता है। बराबर है, पर हाँ हाँ अभी अभी वो दोनों में, अभी इस दोनों है हमारे पास। हाँ, अभी तो दोनों क्योंकि ही है, क्योंकि हाँ, मोह के उदय के चारित्र कारण। मोह के कारण तो हो रहा है, पर वो चारित्र मोह भी क्यों आ रहा है? हमारी श्रद्धा में है कि मैं मीन्स मेरा बेटा, मेरे बेटे और मैं फर्क ही नहीं कर पा रही। फर्क नहीं होता। यस, ये तो उसका रीजन है ना। But एग्जैक्टली। Bhaji, Mithya Darshan is Atattva Shraddhan, right? यस। So how does that fit into this thing of तो what ये she कौन सा said? तत्व हुआ बताओ? Jiva Jiva. मैंने मेरे बेटे को जीव अपना जीविकी। मैं समझ लिया। हाँ, वो Jiva तो Jiva दूसरा ही है, तत्व। वो तो पुद्गल है, आत्मा भी उसकी दूसरी है, पर हम्म। मैं उसमें ही मेरापन करे जा रहा हूँ, हम्म। है ना। यस। हम्म। तो She has वो So one. more. एनालिसिस जब हम करेंगे ना डे टू डे लाइफ में भी, एंड इट्स ओके टू थिंक योरसेल्फ एज रॉन्ग, दैट्स फाइन, even though you are not able to give it up yet, but at least you're recognizing you're in the right path. Then you recognize, okay, मैं अभी ये कर रही हूँ बिकॉज मेरा बहुत तीव्र मोह है इसके प्रति, या पैसे के प्रति, या किसी पर्सन के प्रति। So when we say मेरा तीव्र मोह है, that means मेरे तत्व का श्रद्धान का निर्णय नहीं हुआ है अभी तक उस बात बिल्कुल, में। वो तो नहीं हुआ है। That is correct. और निर्णय होने के बावजूद भी अगर हो रहा है तो भी उस पर्सन के प्रति अटैचमेंट है, बिकॉज मेरे चारित्र में अभी नहीं आया। इवन दो निर्णय मैंने कर लिया है, फिर भी चारित्र में नहीं आ पा रहा है। So samyak Okay. drashti can also have mithya Yes, charitra. because it is Yeah, not they have to. completed. Because see, Yeah. Samyak Darshan is only like Correct. one kashaya is One gone, part. but One Maybe part. they still have Anantanubandha to, is gone. They still have the other right, three that and will allow Correct. them that to. is what they are working towards. Correct. So yes, बाबा जी, उनका एक और एक क्वेश्चन है. सीमा जी हाँ, has a third question. Seema ji has a third question. Okay, so अब आपका third question ये है कि इच्छा को कैसे रोकें।
Okay. Iksha. Very nice. That was my mythbuster also. इच्छा को कैसे रोकें, राइट? तो बेसिकली ये इच्छा को तो मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करी है लाइफ में, और मैंने ये देखा है कि इच्छा पहले तो हमें ऐसा लगता था ये इच्छा की पूर्ति हो गई तो सुख है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कुछ चीज खरीद लाए, पहन के देखी नहीं बनी, फिर लगता है अच्छा लेट्स रिड्यूस आवर फिगर, जब रिड्यूस हो जाएगा तब पहनेंगे, फिर ड्रार में रख, तो कई बार तो लाई और सीधे ड्रार में रख दी। तो इसका मतलब खरीदी चीज रख दी ड्रार में, फिर भी खरीदने की इच्छा है, अपने साइज का खरीदेंगे, फिर साइज का खरीदा वो भी ड्रार में रख दिया, फिर तीसरा देखा तो इम्पल्सिव चल रहा है, मैंने देखा, तो मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब ये इच्छाएं तो उल्टा बढ़ती जा रही है। और एक के बाद एक ध्यान से देखा जाए तो ये पाने की इच्छा, फिर मैंने कई बार आपको बहुत संतोषी भी पाया कि मुझे हर किसी में इच्छा नहीं, किसी किसी को पैलेस बनाने की इच्छा है, जबकि मुझे एक घर में बड़ी संतुष्ट हूँ, ना ही मुझे प्लॉट खरीदने की इच्छा है ना कुछ, पर लोगों की इच्छाओं को देख, तो कई बार लोगों से भी बस सीख लेते हैं, परंतु इच्छा का जो विस्तार देखा लोगों का, मुझे समझ में आया कि इच्छा की पूर्ति करते जाओ, उस इच्छा का गड्ढा पूरा भरता नहीं है, उल्टा वो बढ़ते ही जाता है, उसका वो डायमेंशन एंड विड्थ एंड हाइट एंड एवरीथिंग। तो हम पहले तो सोचते थे कि इच्छा पूर्ति होगी सुखी हो जाएंगे, जबकि अब समझ में आया कि इच्छा पूर्ति होने के बाद उल्टा हम और दुखी हो रहे हैं, क्योंकि अनिच्छाओं का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। तो उस और फिर जब इच्छा पूर्ति हुई, मान लो हमें कुछ मिल गया और किसी और ने पहन ली मेरी साड़ी जो मेरे को मिली थी, तब शुरू शुरू में ऐसा भी हुआ है, तो फिर साड़ी पहन तो ली, पहनने के बाद डर्टी कर दी, ड्राई क्लीन नहीं कराई, तब ऐसा लगा कि अरे यार, इट्स लाइक शी शुड हैव एटलीस्ट डन समथिंग लाइक दिस, खाना तो एटलीस्ट क्लीन करके देना चाहिए था, तो उसके कारण क्रोध हुआ। तो समझ में आया कि अरे क्रोध हो क्यों रहा है बिना कारण के, जबकि अकेले उसने वस्तु यूज करी थी। तब समझ आया कि इच्छाओं से अकेला ये दुख नहीं है, इच्छाओं से रूप प्रवृत्ति, कषाय आदि रूप प्रवृत्ति, मतलब क्रोध मान माया लोभ भी हो रहे हैं। फिर बहुत ध्यान से सोचा जाए तो इच्छा, कई बार ऐसा भी होता है अपन सोशल सेटिंग में होते हैं और अपने बच्चे कुछ कर रहे हैं, दूसरों के बच्चे थोड़े ज्यादा डिसिप्लिन है, उनको देख के अपन को लगता है अपने बच्चे समझाओ, अपन बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे फिर दुखी होंगे, तब उससे भी समझ में आता है कि ये हमारी इच्छा है कि हम उनका परिणाम कराना चाह रहे हैं, क्यों हम अलग फिलोसफी यूज करके बताए कि वी बी अ रोल मॉडल, या वी एड्रेस इट इन अ डिफरेंट वे, व्हिच आई यूज्ड टू डू क्वाइट अ बिट। पर ये सारी चीजें देखते रहे, लाइफ में ऑब्जर्व करते रहे और रिस्पेक्ट करते रहे, तो समझ में आया कि इच्छा करने से मतलब कषाय भाव हुए, विषयों की इच्छा भी हुई, कषाय भाव के अनुसार यदि अपना परिणाम नहीं हुआ तो अपन दुखी भी हुए, इसलिए कषाय भाव को मिटाकर इच्छा का अभाव करेंगे तो ही हम पूर्ण रूप से सुखी होंगे। और यदि इच्छा ना हो, जैसे इच्छा का पूर्ण आ हो, तो वो ही सबसे एकमात्र सुखी होने का उपाय है, मतलब संतोषी प्राणी जो होता है। फिर उसको और मेरा क्या कहते प्रश्न हैं, था इच्छा कैसे उदासी नहीं हो, प्रवृत्ति। इच्छा निरोधस्त तपः कहते हैं, राइट? अच्छा, तो इच्छा कैसे इसके नहीं बाद हो? में बता, इच्छा कैसे ना हो। जब हम स्वाध्याय करते हैं, तब हमें पता है कि हमें अपने जितना हमें जो जैसा मिलना है, कुछ होना है, वो हमारे इच्छा के कारण नहीं होता, वो अपने भवितव्य अनुसार होता है, और अपने पाप पुण्य के अनुसार होता है। तो यदि हम किसी चीज की इच्छा करते रहे, वो पूरी नहीं होगी, तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन कर रहा है, इच्छा नहीं हो उसके लिए क्या करें, ऐसे बोल रहे हैं ना आप? इच्छा हाँ, को कैसे रोके? विरोधा तप है, हाँ। तो हम फिर संवर निर्जरा के रूप को सही समझेंगे, तब हमारी इच्छा नहीं हुई। और उसमें ये होगा कि जैसे मैंने दो सिनेरियो बताए थे कि एक तो इष्टनिष्ठ बुद्धि करना, मतलब एक ये था कि अपने चारित्र्यों के उदय से हमें विकल्प हुए, विकल्पों से पदार्थों का संयोग है, उसमें इष्टनिष्ठ बना किया तो कषाय भाव हुआ, फिर कषाय भाव से द्रव्य बंद हुआ, फिर उससे अपने कषाय चक्र संसाचित करता रहा। और दूसरा ये हुआ कि जब ये
चारित्र मोह का उदय हुआ, मतलब कि इच्छा हुई, उसके विकल्प हुए, और उसके इसमें हम उसके ज्ञाता दृष्टा बने, तो वो संवर निर्जरा का मार्ग है। और फिर हमारा संवर निर्जरा होगा, और तो इसको हम सही रूप में समझें, और इससे फिर हमारी इच्छा होने की प्रवृत्ति रुक जाएगी, और हमारे आगे के कर्म भी नहीं बढ़ेंगे, कर्म बंधन की प्रोसेस ही स्टॉप हो जाएगी। जो बचे हुए कर्म है पिछले वाले, वो धीरे धीरे शेड होंगे, और हमारा निर्जरा और नहीं, निर्विकार। देखो आप, कई चीजें सही भी है तो कई चीजें रेलेवेंट नहीं भी बोल रहे हो आप। देखो, इसका जिस्ट ऑफ द आंसर इज, वस्तु के जब स्वरूप को हम समझेंगे कि वस्तु Yeah, में I was coming सुख to that. है ही If you नहीं। let me complete, हाँ, तो let me आप complete that. वो इतना सारा कर्म और वो सब अभी यहाँ नहीं अप्लाई हो रहा है, I पर चलो don't यू know फिनिश। exactly what you're looking for, but I was हाँ coming to that also. हाँ, कि पर वस्तु चलो फिनिश, को तो कोई मैंने बात बताया नहीं था है। ना कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि वो हर चीज अपने सोच चतुष्टय में है, हर का परिणाम अपने आप अपने हिसाब से नहीं होता। तो वो ही वाला I was coming to third point also. Because कोई there बात are नहीं, बोलो, फिनिश very करो, many दैट्स ओके। possible answers to that in my mind, and that is what also I was thinking about covering. But yeah, that is, I was really not हाँ, knowing what you're looking for नो, in डोंट that. वरी, इट्स ओके। द मेन थिंग इज कि जिस्ट ये है कि क्यों हम इतना सब स्वाध्याय कर रहे हैं, वस्तु का स्वरूप समझने के लिए। अब वस्तु का स्वरूप समझते टाइम हमें, अब स्वतंत्र जब ये होता है। समझ आ गई है कि ना तो रिश्तों में सुख है, ना वेकेशन में सुख है, ना खाने पीने में सुख है, तो फिर जब सुख तो अंदर ही है, तो फिर इच्छा करने की जरूरत ही कहाँ बची। पर जब तक हमारी समझ पहले सही होगी, उस पे पक्का विश्वास हो जाएगा, तब अपने आप धीरे धीरे इच्छाएं कम हो जाएंगी। तो वस्तु का स्वभाव जो अपनी आत्मा है, उसका ही स्वभाव सुख है। बाकी तो हमें वहीं से बाकी सुख किसी में मिलेगा, सुख है ही कहीं और नहीं, से सुख नहीं तो फिर मिलेगा। इच्छा करने की जरूरत ही कहाँ रह गई फिर, डेफिनेटली। है ना। सो जब उसमें सच्चा श्रद्धान हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये तो मैम इच्छाएं कम सबसे हो पहला जाएंगी। लेसन यही पढ़ा था लाइफ में कि बिल्कुल। So Prabhaji, so Yes. related to this, right, and it was connected to the other question, is that so the Shayopsham is of if Gnana Varniya first, and then so it's always of Gnana Varniya first, correct? Okay. पर Just कई बार confirming. देखो ज्ञानावर्णीय है, right? Because there's obviously not everybody is in this class. There is plenty of people out there who don't want to come. If they want to come, they'll sit through the lectures and sleep in the lectures. You would see in the temple multiple people sleeping, dozing off. The moment they may not otherwise get sleep, but the moment they sit in a lecture, they're sleeping. So what is that? That is their Jnanavarnya Karma ka uday chal raha hai. But Got it. now with their Purusharth, they can get rid of that Jnanavarnya Karma. अब उनको पता है कि नहीं, करने लायक तो यही है। अब नींद भी आ रही है तो no, I'm going to make the Purusharth still keep coming, still to keep listening. That will help get rid of those Jnanavarnya Karma, in which case the changes will come, you'll start understanding, you'll start getting interested. And then as you experience, as you understand better, then the charitra, it will come. So Prabhaji, the process will be कि ज्ञानावर्णीय के शयोपशम बढ़ते जाएंगे, so that as your ज्ञान becomes more accurate, and then because of that उसी के क्षयोपशम या उपशम के time we can do निर्णय, and then we will get श्रद्धान, and then all our ज्ञान will become सम्यक ज्ञान. Right. And जब भी सम्यक ज्ञान होएगा तो वो दर्शन मोहनीय ही जाएगा खाली. That's why you get सम्यक ज्ञान, right? Because वो मोह का the विपरीत श्रद्धान, वो विपरीत ज्ञान नहीं है. श्रद्धान चला गया जो है, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा है, वैसा ही इसलिए ज्ञान वो है। सम्यक ज्ञान हो जाता है, उसको बोलते हैं related to your atma then. And then the samyak mithya charitra will continue till the 10th gunasthan, and then you will get to the 11th after the right. But now with that correct Shraddhan, all along, even though you may be doing wrong things, but
you are understanding that this is wrong happening, this is the right thing. So अंदर से वो श्रद्धान नहीं जाएगा, श्रद्धान फिर भी सही. Correct. So that's the way it is. Prabhaji, should I play Meghaji's or are we out of That time? is up to you. We are out of time actually. So Because I that think is up India to वालों you. को तो बहुत late हो गया शायद. I don't Right. know. Yes. सोने के लिए Can Yes, I- it is. It is almost, oh my God, it's 11:15 here. It's 11:15. Can I ask one quick question though? Yes. I can remember it all of a sudden now. Anyway, it's so Prabhaji, it's like, I guess, so for example, I'm here in India, I'm going on vacation. I'm thinking of what my next vacation is. So even though my knowledge is increasing with religion, Mhm. clearly my belief is not, and I know that so as my knowledge is increasing, but yet my ichha, back to the whole thing, right? The ichha continues, and I guess it's just a process that you just keep going through, right? Till you Okay, so realize here there is- is no, no no. suk in it. Yeah, I guess, and then that, yeah, and So I know I'll just there is give you no an suk So example, in it, there's two Rupal. things happening. So one but I is, know that there's no suk in it, and I still continue. okay, so that is because, let's say you have Uday, right? Your previous karmas are coming into fruition. So let's say you have certain punya karmas or whatever karmas that are making Yeah. giving you the circumstance where you are able to go to vacation or whatever it is that's happening in your life, right? Because Right. all the karmas can do is give you the appropriate circumstances. Now, there's two Correct. things that you can do at that time. You got the opportunity to go to the vacation. You can say, no, I don't need this. I don't have to go. You can reject it. Punya karma uday mein aaya, chala gaya. You didn't get involved in. Number two, you could get involved in it because you have the opportunity for whatever reason you go. You are also happy temporarily. Yet, in the back of the mind, you know that this is not going to be the reason for my ultimate happiness. So let's say you bought the tickets, you went, which happened to me. We bought the tickets for Sri Lanka. My husband ended up getting stents or whatever happened at the time, and we couldn't go. Last minute, we had to cancel this the day before or 2 days before. But it didn't make me upset, not even a drop, not even a little. Because my Shraddhan from the beginning was not that this Sri Lanka vacation was going to give me major happiness or permanent happiness or anything. It was just my Punya Uday was going to make me go there. So fine. And some, what do you call that? Antray came. So I couldn't go. Now, if that would have made me very upset, that, oh my God, we have been planning for so many years. I wanted to go. Finally, there was an opportunity I was going to go. We had tickets. Now we're losing all this money of the tickets. That's how my mind would think if I didn't have the right Shraddha. But And I'd Prabhaji, be all really that, upset about it. you could have the right Shraddha and have all that too, because all that is Charitra Mohaniya Uday. That is true, but still they go hand in hand. You need both, right? I mean, you need the first Yes. one, though, right? Yeah. So what I'm saying is you could react somewhat, but your reaction will usually not be so strong because Got it. inside you know what is the truth. Or Got there it. is also And a lot of possibility. times you won't react at all. It is not going to bother you so much because you have the right Shraddha. But the other possibility is you could just be Mand Kashai and then that is happening and it's not really about Shraddha either. That is also true. Yes. Now say that again. So you could be just a Manda Kashai person, like who is a relatively milder in their Krodman Maya. And Got it. inside, you really don't have the confirmed Shraddha. Right. So those are all possibilities. Yes. And the thing is, the person with Shraddhan will be the person that will know they have or not. We are only seeing their external Yes. We will never know whether they are We'll never Mandkashai know. or Samyak Drishti. Only they will know their truth. Yeah. Correct. But then I Because also we feel that see a lot of people that are non-reactionary, right? Because they're yes. very Mandakashai people. There are those types of people. But Yeah. they could still hold a grudge inside against people.
they Yep. could still have a lot inside. So there's all types of cases. Yes. Yeah, the other day I was watching Netflix and I was like, I could actually be reading something on Dharam, and I was like, but this was supposed to be Krambandra Paryay, so here we go. I'm just like, I'm so riddled But with don't guilt. become chadmast in that, okay? And I got no, but then I No, got not riddled with guilt and I Chadmast shut is it not off the right word. What Swachhand. is it? by getting Swachhand. swayed by it. Swachhandi, Swachhand. Swachhandi, sorry. Swachhandi, Yes, don't become Swachhandi. Swachhandi in this also. No, you can't. No, you can't, right? केवल जी Then I got कुछ भी कहती है consumed. फिर भी उसका अंतरराष्ट्रीय लोग पकड़ लेते हैं. I Then I like got all those consumed with barriers. guilt and I shut it off. Mm. Ma'am, But what's guilt is the not meaning good. of Chadmast? What's the actual meaning of Chadmast? Chadmast means not yet reached, in between. So Okay. sadhus are also Chadmast, Shravaks are also Chadmast. Just different degrees. So not perfect, basically, yeah. Is it a certain gunasthan for which it is called like 52, 7? Not really. I think it is all Yeah. relative depending on if you're talking about Charitra Monia, then compared to Sadhu, Shravak is Chadmast. If you're talking about Kevli, then compared to them, even Sadhu is Chadmast. It's just like that. I came across this term as Chadmast Muni. Yes. Yeah. Because वो केवली तो है नहीं ना, अभी perfect नहीं है ना. So they're still Chadmast. Right. राष्ट्र की भाषा बड़ी नयों में निबद्ध होती है तो सब Yes, so it's all relative, right? We are living in a And relative Kanban. world. And Very real relative. is where we need to reach. Correct. Yeah, that's why to understand Shastri we need your help. But this is when Gandhars and all become so much more interesting, right? After we've studied it and then you go back and read and you have so many questions, right? Yeah. And there are many Yes. difficult terms that we are coming across. Any particular website we can approach, or I don't know how to Oh. go about it. I Oh, by think the way- there is a Jain Kosh, there is a Jain GPT, somebody said now. There's all Yeah, there kinds is. of things Jain going on. GPT Yeah. doesn't work. Oh, But it Jain doesn't Quantum anymore. is fine. By the way, my sister told me, and I haven't had a chance to look it up, so I haven't. But just as a FYI, and someone can, I mean, I'll do it tomorrow. But my sister said that Swadhyad, Wikipedia has an excellent explanation for. Swadhyay. Syadvad, not Swadhyay. Syad, yeah. Syadvad. Syadvad. Multiplicity of viewpoints in explaining is what I think she's talking about. That there is, it's fine. You can, it's okay to Google it and Just for see what it additional, says. just for additional information. That's all. So Yes. I've got 3 Jain Kosh, Jain GPT, and Syadvad Wikipedia. These 3. Thank So you. one thing I will tell you, Dolly All ji. she's saying in Wikipedia, Swadvad ka explanation अच्छा है. That's all she's saying. But Okay. That's Dolly all I'm ji, saying. in response to your question, you need to contact Prabhaji whenever you have these things, set up a time, talk to her, because that will be the best way to get your clarifications. I just feel this Yes. guilt that, I'm just approaching her and disturbing her for some minute. No, I don't it's think she is. okay. I'm fine. You can call me if I'm not available. Just send me a message, and when I have time, I'll answer your question or call you back. Great, ma'am. Great. Thank you so much. Okay, no problem. And ma'am, Megha ji will give you a call, and accordingly, you can ask her. Yeah, and she I- already messaged me, and I haven't listened. I just saw her message. She recorded her Gandhar. So I'll listen to her. I'll listen and then I'll call her and then do her And then- questions. And Prabha, sorry. Prabhaji, I'm also left, so I will record it latest by Monday and send it to you, and then you can let me know what day time works for you. So I'm assuming you're not in Mumbai, right? Not today, but I will be tomorrow. Oh, okay. I mean, I don't know if you're going to do it, but we were possibly considering doing that Taj thing. I don't know. Oh, when are you doing it? So, I don't Well, know. I'll touch base with you Yeah, separately tomorrow. I asked somebody if they wanted to go today, so let's see what they respond. So, Okay, I'll Yeah. chat with you Vimalji, tomorrow can I then. tell you something? I have completed all my assignment, but when I was trying to upload it, it was not letting me upload because server was down.
For LCP also the same applies. So whenever it is up and running, I'll upload rest of them. That is fine. Like, wo to usually, if anybody has an issue, just put it in the team leaders so that way they know about the problem. Because if they don't know, they cannot fix it. So whenever Yeah, you have a I problem, informed Tanuji. just Yeah, when I yeah. informed to. But try not to inform them personally anymore because they're going to be very busy with all this exam stuff. So just put a When we message into in the team group. leader group, Jin, Jinal I ji. think somebody put it in the Jin, team leaders, They Tanuji have. and no answer has Tanuji come that it's has. resolved. And it's been Yes, 2 days, and I think it's okay. When it gets right. resolved, they'll let us know, and then people can upload. They usually do. So whenever you Mhm. put it Alright, in the team guys. leaders group, Jinal or somebody picks it up. She sends it to the website group. They take care of it and she puts a message back in the team leaders because at least during exams, we should not be disturbing Tanuji and all these people. So Hey, guys, it's I'm going best to, can to, I, yeah. so Yeah, I'm that's going to fine. log We End are the off. done. I'm class. going to do Okay. the, yeah, end the class. Okay. So that's fine. Huh. Just 1 second. Okay. Yeah. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार वंदना शत बार जय जिनेन्द्र everybody. Jai Jinendra.